everyone. We are back again. So, as usual, I'm super wonderful and super excited to start the session because today I'm gonna start chapter number 2, polynomials. So, before wasting any time, let's begin. So, first, I think you have studied this chapter in the previous classes also. But it's polynomial. What is that? Because जो हम पढ़ने जा रहे हैं पता तो होना चाहिए क्या करने जा रहे हैं. So basically, let's start what is polynomial from very basic. So what is polynomial? So polynomial is an expression that has a variable and coefficient. Oh my God, ये क्या होते हैं variables and coefficients? So what is variable and what is coefficient? For example, if I write 3x, so यहाँ पर हमारा 3 क्या था? That is variable जो कि vary कर रहा है बार बार. And coefficient is something जो भी इसके आगे लगा, that is 3 is the coefficient. For example, if I write 4xy, now this is your variable that gonna vary x और y. आपकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. It can take 1 2 3 5, any value it can take. But जो coefficient है जो इसके आगे आपका लगा हुआ है variables के आगे, that is coefficient. So polynomial is an expression that has variables and coefficient connected with operations like addition, subtraction, multiplication. Yes, बहुत important thing. Whole number exponents on the power. For example, अब polynomial का पता कैसे चलेगा? First, coefficients और variables होने चाहिए. Addition, subtraction, multiplication के अंदर कुछ भी हो. And third thing, that is whole number जो exponent है, that should be the exponent है वो whole number power में होने चाहिए. For example, if I write a polynomial, like if I write 4x square plus 5, what's that? Whole number power है, variable है, coefficient है, constants है. It's is it a polynomial? Yes, that's a polynomial. Okay, so एक और लिखते हैं. X minus okay, root x minus 2. What's that? अब देखो, whole number exponents की power होनी चाहिए. This root x, what does it actually mean? It actually means this, x की power 1 by 2. Is it a polynomial? No, that's not a polynomial. Right, और चलते हैं आगे. So let me write one more example, that is 2 by x minus 3 y plus 5. Is it a polynomial? Think of it. अब फिर से देखो, यहां पर 2 और x की पावर एक्चुअल में क्या है? दैट इज -1. डिनोमिनेटर में ऊपर लेके आएंगे तो दैट इज एक्चुअली -1. सो इज इट अ होल नंबर? नो. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स कौन से होते हैं? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सो पावर 0 भी होगी तब भी चलेगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, 5 के साथ कुछ भी है जिसकी पावर 0 है, समथिंग पावर 0 इज एक्चुअली 1. सो ये पॉलिनोमियल नहीं है. अगेन, okay, what about this one? Now अगर मैं लिखूं x minus root 5, that's a polynomial because x की पावर एक्चुअल में 1 है. और ये रूट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो भी इसके साथ नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ x है, y है, दैट एक्चुअली हैव अ पावर. सपोज y है, दैट एक्चुअली हैव अ पावर 0. दैट्स अ होल नंबर. सो ये हमारा पॉलिनोमियल है. सो इसमें से दो जो हैं आपके, this one is a polynomial and this one is a polynomial. So polynomial को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ पावर चेक करनी है, जो उसके कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है. हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था लास्ट लाइक 9th स्टैंडर्ड में. सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर इज द डिग्री. So polynomial are actually of three types. There is a linear polynomial, there is a quadratic polynomial, and there is a cubic polynomial. So first of all, linear polynomial क्या होते हैं? Linear polynomial वो polynomial होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है. Quadratic polynomial वो होते हैं जिनकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है. Cubic polynomials are the polynomials जिनकी डिग्री जो होती है वो 3 होती है. Okay, so there are three different types of polynomial: linear polynomial, quadratic polynomial, and cubic polynomial. Let's discuss these all three. So first of all, linear polynomial जिनकी डिग्री 1 है. Like for example, 2x minus 3, highest power is actually 1. और भी अगर हम लिखें, so like 3x minus 5, that's a linear polynomial again. और भी अगर हम लिखें, so y minus 2 by 3, that's a linear polynomial, right? So सबकी जो डिग्री है, highest power है, that is 1. All such type of polynomials are
लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर द हाईएस्ट पावर इज एक्चुअली वन। सो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होगा आपका कुछ इस इक्वेशन के जैसा होगा, ax² plus bx plus c, kind of if I write an example, so 2x² plus 3x plus 4, that's highest power you can see, that's 2. Okay, so quadratic polynomial। और एग्जाम्पल देखते हैं लाइक 4u², कोई भी वेरिएबल हो सकता है, राइट, 4u² minus 5, right, that's highest power is actually 2। and even this also, like if I write y² minus y, so that's highest power is actually 2। अब आप पूछ रहे हो कि मैम यहाँ पर c नहीं है, so that's actually 0, right? So all such type of polynomials are quadratic polynomial। अब चलते हैं cubic polynomial। cubic polynomial जहां पर highest degree 3 है। so highest degree 3 अगर मैं यहाँ पर लूं तो सिंपल आप ऐसे देख सकते हो कि it will be like 4x cube 2x plus 5, right? हाईएस्ट पावर आपको 3 देखने को मिलेगी। अगर मैं कुछ और लिखूं लाइक √3x³ दैट्स हाईएस्ट पावर इज 3। बाकी के सारे डिजिट 0 है, नो प्रॉब्लम। कोई और भी लिख सकते हैं हम लाइक 4x³ minus 3x², हाईएस्ट पावर इज एक्चुअली 2। सो ऑल सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हमने 3 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया, linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial। Now let's come to the zeros of the polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, जीरोस कह लो या फिर जीरो हैव इन अदर वर्ड्स, कहीं कई जगह पर आपको रूट्स भी देखने को मिलेगा, इट्स एक्चुअली सेम थिंग, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो बेसिकली जीरोस वो वैल्यू होती हैं जो अगर मैं इक्वेशन में पुट करूं तो आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ इक्वेशन लाइक x² minus 1, अब इसके अंदर मैं x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ क्वेश्चन, अब इसके अंदर थिंक ऑफ इट, 2 मिनट सोचो, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूं x की, ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि आंसर आ जाए 0। आई कैन पुट 2 वैल्यूज हियर, या तो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, या तो मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं। लेट्स चेक -1। सो लेट्स चेक इट, सो लेट्स ट्राई विद 1। अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 का स्क्वायर इज एक्चुअली 1, सो 1 minus 1 0। सेम वे अगर यही इक्वेशन है और मैं इस बार इसके अंदर -1 पुट कर दूं, सो दैट विल अगेन बी 1 minus 1, सो आपके पास आंसर क्या आएगा 0। सो बेसिकली आई कैन से दैट कि जो यहाँ पर 1 और -1 थे, दे आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। मतलब ऐसी x की वैल्यू जो मुझे y0 दे रही है। आप देखो ये ग्राफ दे रखा है, ऐसी x की वैल्यू जहां पर y0 है, दिस, राइट, ऐसी x के लिए जहां पर y0 है, this। So these two we can say that these are the zeros of any equation। zeros, नाम ही जीरो है तो मतलब ऐसी x की 2 वैल्यूज जो हमें 0 दे रही है y, so that's zeros of the equation। ओके अब एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो हमारे 2.1 है उसके अंदर बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं आपको, जिसके अंदर आपको जीरोस बताने हैं। सो सिंपली कुछ नहीं करना है, सुपर डुपर इजी, जस्ट चेक करो जहां पर x कुछ आने से y0 आ रहा है। तो देखो y0 है, इट हैव 1 0। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? एक ही जीरो है इस क्वेश्चन में। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर x को कट कर रहे हैं, x को इक्वेशन कट, x को लाइन कट कर रही है, मतलब y0 है उस पॉइंट पे, राइट। अब 1 2 3 4 सच पॉइंट्स, तो कितने जीरोस हैं यहाँ पे? 4 जीरोस है। ओके 1 0 सी नहीं, 0। ओके और राइट, सो यहाँ पर देखो इन दिस ग्राफ दिस लाइन इज नेवर and not cutting, never, I'm saying because क्योंकि ये parallel है, see it is actually a line and it's going to it's same, so x के parallel है बिल्कुल, ये x को कभी भी कट नहीं करने वाली। तो पैरेलल है, कभी भी कटने वाली करने वाली मतलब y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होने वाली। अगर y की वैल्यू कभी नहीं 0 होने वाली, because इसके अंदर इस क्वेश्चन में we are having no 0। ओके सो कोई भी 0 नहीं है, सिर्फ सुपर इजी, सिर्फ आपको देखना है कि x एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है। Okay, now let's talk about relationship between zeros and coefficient। zeros और coefficient के बीच में relation क्या होता है? equation मैंने आपको already बताई, और with that particularly we talk about quadratic equation। अगर हम quadratic equation की बात करते हैं
सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है। नाउ सम ऑफ द जीरोस जो होता है दैट इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है दैट इज सी बाय ए। है क्या ये? लेट्स अंडरस्टैंड इट बेट मोर विद एन एग्जांपल। सो एक मिनट, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय मोबाइल, इट स्टार्टेड रिंगिंग। Alright, so product of the zeros क्या होता है? That is C by A. Let's understand it better with the example. So आपकी बुक में कुछ questions हैं जिनकी हेल्प से हम इसको समझते हैं। So first, पहले तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट थिंग आपको दो चीजें सीखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे निकालते हैं? सुपर डुपर इजी। आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। सो हाउ वी गोना डू इट? सिंपली कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ इस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, राइट। सो अगर आप यहां पर देखोगे इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। सो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हो, अगर मैं पता लगाना चाहूँ कि मेरी बी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज एक्चुअली माइनस टू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इफ देयर इज नथिंग, सो दैट इज वन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज एक्चुअली माइनस एट। ठीक है, सो यहाँ पर ए की वैल्यू है आपकी वन, बी की वैल्यू है माइनस टू, सी की वैल्यू है माइनस एट। आपको फाइंड नहीं करना, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीरोस ऑफ अ इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? सो लेट मी मेक इट इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट्स इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। कुछ नहीं करना, सिंपल, दैट इज सुपर डुपर इजी। सो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो, जहां पर आपको टू एक्स दिख रहा है वहां पर एक ब्रैकेट बना दो, और बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज लिख दो। कुछ नहीं किया मैंने, सारी इक्वेशन एज इट इज। नाउ जस्ट डू वन थिंग, जो साइन यहाँ पर है, अगर यहाँ पर पीछे आपको प्लस दिखे पुट इट प्लस, अगर माइनस दिखे पुट माइनस। फिलहाल मुझे माइनस दिख रहा है, सो आई पुट माइनस है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे दो नंबर यहाँ पर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कर कर एट आना चाहिए, और माइनस करके, बिकॉज यहाँ माइनस है, माइनस करके टू आना चाहिए। टू आना चाहिए, माइनस टू भी नहीं आ सकता, टू आना चाहिए। सो थिंक ऑफ इट, मल्टीप्लाई करके टू आए, एट आए, फोर टू जा एट, और अगर फोर माइनस टू करोगे तो आ जाएगा टू। सो यहाँ पर मिल गए हमें टू नंबर, दैट इज फोर एक्स एंड टू एक्स। सो नाउ आई विल ओपन द ब्रैकेट, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम? वी विल टेक एक्स कॉमन, एक्स माइनस फोर, और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? आई थिंक टू वी कैन टेक कॉमन, से टू कॉमन लिया हमने, एक्स माइनस फोर। जब भी कॉमन ले रहे हो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी डिजिट यहाँ पर आ रही है ना, वही यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि हमें दोबारा कॉमन लेना है। सो नाउ यहाँ पे भी एक्स माइनस फोर, नाउ यू हैव टू थिंग्स, राइट, दिस एंड दिस। नाउ इन दोनों में से कुछ कॉमन लो। आई थिंक एक्स माइनस फोर दोनों में कॉमन है। क्या बचा? यहाँ पर बचा एक्स, और यहाँ पर बचा प्लस टू। नाउ दैट्स इक्वल टू जीरो। दो कोई भी नंबर्स इक्वल टू जीरो कब होते हैं? अगर मैंने कोई दो नंबर लिए, वो इक्वल टू जीरो कब होंगे? या तो पहला वाला जीरो या दूसरा वाला जीरो, ओनली वन कंडीशन। सो हम मानते हैं कि फर्स्ट वाला जीरो है। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स माइनस फोर। लेट मी राइट इट कंप्लीटली। सो यहां पर आ गया मेरे पास ये एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, राइट। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज फोर, राइट। अब नेक्स्ट वाला क्या है? दैट इज एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। सो नेक्स्ट वैल्यू एक्स की क्या आ गई? एक्स माइनस टू। अब चलते हैं वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये क्या कहता है? लेट्स गो टू टॉप। सम ऑफ द जीरोस जो है वो बी बाय ए आएगा, जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है वो क्या आएगा? सी बाय ए। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। सो अगर हम सम ऑफ द जीरोस फाइंड करें, सो सम ऑफ जीरोस आई एम फाइंडिंग। So sum of zeros, that is, I'm just adding these two. So add किया 4 and 2 को, 4 plus minus 2, what I get? क्या आया? That is
4 - 2 इज 2, सो 2। आप पूछ रहे हो कि मैम ऐड है, आपने -2 कर दी, लेट मी जस्ट एलाबोरेट इट। सो दैट इज 4 - 2, सो 4 - 2 इज 2। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर मैंने किया यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सो प्रोडक्ट करते हैं इनका, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यू नॉट राइट अल्फा और बीटा, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट सम लिखो, प्रोडक्ट लिखो, वो भी चलेगा। सो 4 शुड बी मल्टीप्लाइड विद -2, सो दैट विल बी -8। अब क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन वाज सेइंग दैट कि क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारे पास, ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमारे पास, -b/a, और ये क्या आना चाहिए, c/a। अब फर्स्ट टेल मी, मैंने आपको बताया था व्हाट इज a हियर, ax² + bx + c, तो a क्या है यहाँ पे? कंपेयर करो जरा इस इक्वेशन को, कंपेयर करो जरा इस x² - 2x - 8 = 0 को ax² + bx + c के साथ। सो क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आ रही है एक्चुअल में, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1। सो a आना चाहिए आपके पास 1। क्या ये 1 आ रहा है? सो लेट्स सी दैट, अगर मैं यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा, सो इट्स एक्चुअली 1 आ गया, राइट। b क्या है आपके पास, -2, b इज -2, राइट। सो -b is 2, सो b is -2 एक्चुअल में। c क्या है, -8, ऑलरेडी आपको दिख रहा है, c आपका -8 है। सेटिस्फाइड? डन, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, हो गया वेरीफाई, यही हमें करना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। आई थिंक दैट इज सुपर डुपर इजी। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। सो ये भी देखो साथ में जो है इसके, इट सेज दैट, लेट मी मूव इट बिट दिस साइड, सो आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी अंडरस्टैंड करने के लिए। सो इट सेज दैट कि 6x² - 3x -7x। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं इसको, सो इक्वेशन इज नॉट एक्चुअली इन द फॉर्म, इट इज नॉट इन द ax² + bx + c। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x² - 7x - 3 = 0। सो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, 6, b की वैल्यू कितनी है, -7, c की वैल्यू कितनी है, -3। सो सेम थिंग वही आपको करना है, कुछ नहीं करना। सो अभी क्या करेंगे हम, सिंपल सारी इक्वेशन एज इट इज लिखो, जहां पर आपको 7x दिख रहा है जस्ट पुट अ ब्लैंक देयर, एंड नाउ ये वाला साइन उठा के अंदर, जो यहाँ पर साइन है उसको उठा के अंदर। सो अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, आई नीड टू नंबर्स, 6 3 = 18, आई नीड टू नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और सब्ट्रैक्ट करने से आए 7। थिंक ऑफ इट, मल्टीप्लाई करने से 18 और सब्ट्रैक्ट करने से 7। टेक अ पॉज, थिंक ऑफ इट, व्हाट विल हैपन, व्हाट नंबर कैन आई टेक? So yes, I can take 9 and 2, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे पास 18, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट 7। सो लेट्स ओपन दिस। सो इक्वेशन आपको बन गई 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब आती है कॉमन लेने की टर्न। सो नाउ वी नीड टू टेक कॉमन। सबसे पहले ब्रेक करो, पहले तो ब्रैकेट लगाओ, वैल्यू पुट करो, अब कॉमन लो। सो कॉमन लिया हमने, सो 6x² और 3x, सो यहाँ पर आई थिंक 2x कॉमन आ रहा है। सो 2, राइट, नो नो नो, आई कैन टेक 2। सो 2 दोनों के टेबल में नहीं आ रहा, 3 आई कैन टेक, राइट, 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों आते हैं, सो आई कैन टेक 3 कॉमन, और x आपको दिख ही रहा है कॉमन। सो यहाँ पर मैंने 3x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2x - 3। ओके, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सो आई विल राइट 1। सो यहाँ पर अगर हमने लिया, सो x - 2x - 3 आ गया। ओके, सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो क्या हो गया यहाँ पर, 2x², 2x - 3, और यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 3x - 1, सेम वे, राइट। सो अभी लेट्स पुट इट इक्वल टू 0। अब फिर से अगर ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा और 0 आ रहा है, सो बेसिकली कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं क्यों 0 आता है, या तो पहली वाली 0 या दूसरी वाली 0। सो लेट्स एज्यूम कि फर्स्ट वाली 0 है, 2x - 3 = 0। सो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 3 यहां पर आएगा, 2 आ जाएगा नीचे, सो ये आ गई 3/2।
फिर हमने अगर इसको सॉल्व किया 3x+1 इक्वल टू 0, सो ये क्या आएगा, 3x यहाँ पर आ गई और -1, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। नाउ फिर से वही करना है हमें, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस हमने किया अल्फा प्लस बीटा, क्या आ रहा है हमारा सम ऑफ जीरोस, दैट इज 3/2 प्लस -1/3। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दैट इज 3/2 -1/3। सो सॉल्व किया हमने फर्दर इसको, एलसीएम इज 6, सो 2 3 जा, सो 9 माइनस क्या हो गया हमारे पास, 9 माइनस 3 2 जा, सो 9 - 2 दैट इज 7/6। 7/6। और अगर हम प्रोडक्ट करते हैं इसका, सो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 को मल्टीप्लाई किया हमने -1/3 से, सो यहां पर आ गया -3/6, राइट। सो सम ऑफ द जीरोस आना चाहिए मेरे पास -b/a, चेक कर लो एक बार, और ये आना चाहिए c/a। सो a तो है हमारा 6, परफेक्ट, a है 6। नाउ b क्या आना चाहिए, -7, 7 = माइनस, ऐसे है ना, 7 = -b, सो b क्या हो गया, -7, राइट। राइट, तो b की वैल्यू क्या है, -7, करेक्ट। c की वैल्यू क्या है, -3, करेक्ट। वी रीच्ड, वेरीफाइड, डन, इजी, सुपर इजी। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज tx², सॉरी at² -15। सो इसको भी हम करेंगे सेम वे। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो सुपर इजी, t² -15 है यहाँ पे। सो t², इट इज a² - b², आई कैन राइट इट एज √15 का स्क्वायर। a² - b² इज a + b, a - b, राइट। फिर से यहाँ तो ये 0, t + √15 0, या फिर t - √15 0। अगर यहां से देखेंगे तो ये आ गया -√15, और यहां से t की वैल्यू आ गई +√15। अगेन सेम थिंग, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस करते हैं अगर हम, अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस, सो ये आ गया 0। सो अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सो दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अगर हम इससे और इसे मल्टीप्लाई कर दें, व्हाट वी गोना गेट, सो यहां पर अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा, सो सी दिस, आई एम गेटिंग √15, so that is 15, so -15, this, so it should be -b/a, it should be c/a। so यहां पर देखो, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, यहां पर अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूं, सो ax² + bx + c। so notice one thing, ax², what is the value of x² वाले कोफिशिएंट, मतलब t का कोफिशिएंट, दैट इज 1, सो दैट इज करेक्ट, a की वैल्यू 1 है। x वाली टर्म कोई भी नहीं है, मतलब t वाली टर्म कोई नहीं है, सो b इज एक्चुअली 0। c की वैल्यू है 15, -15, दैट्स एक्चुअली हियर, यू कैन सी, डन, इजी, सुपर इजी। ऑलराइट, सो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जीरोस फाइंड करने हैं या रूट्स फाइंड करने हैं, उसके बाद आपको उसका सम करके दिखा देना है, उसका प्रोडक्ट करके दिखा देना है। सम करके दिखाओगे दैट इज b/a, -b/a आएगा, और प्रोडक्ट करके दिखाओगे दैट इज c/a। सुपर इजी। सो नाउ अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट एंड सम। अब सम दे रखा है आपके पास, यू हैव दिस, क्या गिवन है, 1/4, you have this, oh let me write here, you have this, that is -1। now you already know this is given, right? so sum, ये रहा product, ये रहा, it is saying respectively sum, product। okay, so sum क्या होता है हमारा, -b/a, product क्या होता है हमारा, c/a। सो इक्वेशन अगर आपको लिखनी है, इक्वेशन इज इन द फॉर्म, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी ax² + bx + c।
इस फॉर्म में. अगर यू नीड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड टू राइट इट, राइट. अब देखो, सुपर इजी. ए की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1, राइट. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ए की वैल्यू 4 है, इसको 4 बनाना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4, राइट. सो ए की वैल्यू आ गई 4. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी. 1 इज इक्वल टू माइनस बी. इफ 1 इज इक्वल टू माइनस बी है, सो -1 इज इक्वल टू बी. सो बी की वैल्यू क्या हो गई, -1. सो -1 x. सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिख रही है, अगर आप, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं आपके लिए. सो -1 मल्टीप्लाई 4, दैट इज -4/4, सो दैट इज सी बाय ए. सुपर इजी. सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -4, सी की वैल्यू. सो दिस इज योर इक्वेशन. दैट्स इट, सुपर इजी. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. दैट इज सम गिवन है आपके पास अगेन, दैट इज 0. प्रोडक्ट गिवन है, दैट इज √5. सबसे पहले हम लिखेंगे सम क्या होता है, दैट इज -b/a. प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज c/a. कुछ नहीं है, लेट मी पुट इट 1. फिर इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में होती है, इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन होगी. सो लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ a b c. तो सिंपल देखो, a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, a की वैल्यू, a both sides there is 1, so it is 1x². b की वैल्यू कितनी है, नथिंग, so I'll put 0x, right. c की वैल्यू कितनी है, that is √5. so the answer is x² plus √5. डन. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज दिस. सो सिंपल, सम ऑफ जीरो क्या है मेरे पास, -1/4. प्रोडक्ट क्या है, ओके. ऑलवेज रिमेंबर, कभी कभी ऐसा क्या हो सकता है कि आपको यहां पर लिखा था सम और प्रोडक्ट, हो सकता है आपको दे दें जीरोस. अगर आपको जीरोस दे दे तो आपको सम और प्रोडक्ट करना पड़ेगा. अभी फिलहाल मैंने सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम लोग इजीली करते जा रहे हैं. अगर हमें जीरोस दे दें और हमें कहें कि सम और प्रोडक्ट, मतलब इक्वेशन निकालो, जीरो दे दी और इक्वेशन निकालने को कहा, सो हाउ वी कैन डू, पहले हम सम फाइंड कर सकते हैं. पहले हम इसको ऐड करेंगे, सम फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर उसको -b/, और डायरेक्टली जो हम लोग प्रोसेस अभी कर रहे हैं फिर हम करेंगे. ओके, तो अगर सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दे रखे हैं तो नो, नॉट अ प्रॉब्लम, हम वही कर रहे हैं यहाँ पे. सो अगेन दिस इज, फिर से अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c. दैट्स डन. ऑल राइट, सो ये क्या है, -b/a, और ये क्या है, c/a. सो a की वैल्यू कितनी है 1, सो 1x². b की वैल्यू कितनी है, -1. c -1 इज इक्वल टू -b. सो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई. सो दैट इज 1. सो b की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू भी कितनी है, 1. सो इक्वेशन क्या हो गई, it is x² plus x. Oh, sorry, that's 4. A is 4 actually. See, that's 4. I wrote 1. So it is 4x² plus x plus 1. That's equal to 0. That's done. Okay, so this was all about polynomial chapter. Super easy है, बहुत easy. अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई आपको डाउट हो, do write in the comment section, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ. अगर कोई सजेशंस हो, कोई भी आपको कुछ भी doubts, problems हो, so definitely do write in the chat box and share this video with your friends, with your classmates, everyone, so that everyone will get benefited of it. And do like and subscribe, comment also. Till then, bye bye. Take care. See you super soon. Bye bye.